ایک منٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ آپ ہمارے دعوت پر تشریف لائے۔ ٹھیک ہے ہمیں آ رہی ہے جی ٹھیک ہے آ رہی ماما یہ شادو کریں ماما یہ شاید تو پورے اور ہمیں موقع دیا کہ ہم آپ کے توسط سے ملکی جو صورتحال ہے بات چیت کریں اور اپنے قوم اور ملت کو پہنچائیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اسلاف نے پاکستان کے 2 نیم اور 2 لخت ہونے کے بعد 73 میں ایک آئین بنایا کہ جو باقی ماندہ پاکستان کے لوگ اس آئین کے تحت زندگی گزاریں گے۔ ایک سوشل کنٹریکٹ ہے جو پاکستان کے عوام کی آرزوؤں کا ترجمان ہے۔ ہم نے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جیسے 73 سے پہلے اس سرزمین بے آئین تھی، آئین پر عمل نہیں ہوتا تھا، ایسے لوگ آتے تھے جو آئین شکن تھے اور اس ملک کو تباہ و بربادی کی طرف لے جاتے رہے۔ 73 کے بعد بھی وہ سلسلہ ٹوٹا نہیں، آئین موجود تھا لیکن آئین شکنوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اور پھر جب آئین شکن آ جاتے ہیں، جب آئین اپنی حرمت کھو بیٹھتا ہے تو قانون بھی اپنی حرمت کھو بیٹھتا ہے۔ نہ آئین کی حکمرانی رہی، نہ قانون کی عملداری رہی، اور اس پورے ملک کے جو پیکر ہے وہ تار تار ہوتا رہا، زخمی ہوتا رہا، مجروح ہوتا رہا ان آئین شکنوں کی وجہ سے اور قانون شکنوں کی وجہ سے۔ اس وقت پاکستان کے عوام اپنی تاریخ کے ایک اہم موڑ پر کھڑے ہیں۔ یہ موڑ اگر درست راستے پہ چلتے رہے ہم لوگ تو پاکستان بچ بھی جائے گا اور پاکستان ترقی بھی پائے گا، پیش رفتہ پاکستان ہوگا، باوقار پاکستان ہوگا۔ اگر خدا نہ خواستہ اس میں کوتاہی کی گئی تو پھر ہم وہی ماضی کی زندگی گزارتے رہیں گے اور ہمارا پاکستان، ہمارا پیارا وطن، ہماری مادر وطن مشکلات کا شکار رہے گی۔ اور یہاں جو صورتحال ہے آپ کو پتہ ہے، سیاسی بحران رہیں گے، اکنامیکلی بحران رہیں گے، سوشل بحران رہیں گے، سیکورٹی کے بحران رہیں گے، اور ہم دنیا کی اقوام کے اندر سر اٹھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ اس وقت جو پاکستان میں جدوجہد ہو رہی ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں بھی سابقہ ہے، اور الحمدللہ پاکستان کے عوام نے گزشتہ 7 ماہ یہ ثابت کیا ہے کہ وہ برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے کہ باہر کے لوگ عالمی قوتیں آئیں اور رجیم چینج کریں اور یہاں کے لوگ ان کا ساتھ دیں۔ یہ برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آئین کے اندر یہ عوام کا حق ہے، یہ کسی حکومت کو اتار بھی سکتے ہیں، کسی حکومت کو لا بھی سکتے ہیں۔ پاکستان کے عوام نہیں چاہتے کہ ان کا یہ حق کوئی اور اس پر عمل کرے، اپنے ہاتھ میں لے لے۔ لہذا یہ 7 ماہ بتلاتے ہیں۔ یہ جو کیا اسے کہتے ہیں کہ ضمنی الیکشن ہوئے ہیں، اس میں بھی پتہ چل گیا ہے جو حربہ بھی استعمال کیا گیا ہے، جو کیسز بنائے گئے ہیں، جو اقدامات کیے گئے ہیں، سارے کے سارے غیر قانونی اقدامات کو عوام نے آگے نہیں بڑھنے دیا اور عوام نے شکست دجار کی۔ اس وقت پاکستان میں ایک نیا پاکستان بن رہا ہے، ایک نئی قوم بن رہی ہے، نیشن بلڈنگ کا کام ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ملک کو کمزور کرنے کے لیے عوام کو کمزور کیا گیا۔ ان کو مسلکوں میں تقسیم کرنے کے بعد ان کو مسلکی تقسیم کو نفرتوں کی طرف دھکیلا گیا، علاقائی تقسیم، لسانی تقسیم، اتنے جھگڑے، اتنے اختلافات پیدا کیے گئے کہ ہم ایک قوم نہ بن سکے۔ اس وقت پاکستانی عوام کا بیانیہ کیا ہے کہ ہمیں غلامی قبول نہیں ہے، ہم آزاد خارجہ پالیسی چاہتے ہیں، ہم داخلی خود مختاری چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارے فیصلے پاکستان میں ہوں، کہیں اور نہ ہوں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زمین کسی کے خلاف بھی استعمال نہ ہو، کسی ملک کو ہم اڈے نہیں دیں گے۔ یہ پاکستان کے عوام کا بیانیہ ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں آج 7 ماہ سے پاکستان کے عوام نے یہ ثابت کیا کہ اس بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ نیریٹو ایک نئی قوم بنا رہا ہے، نیشن بلڈنگ کا کام ہو رہا ہے، جو ہونا چاہیے تھا لیکن کوتاہیاں کی گئی اور ہمیں قوم بننے کی طرف نہیں لے جایا گیا، بلکہ ہمیں مختلف جو ہماری لسانی شناختیں ہیں، قومی شناختیں ہیں، مسلکی شناختیں ہیں، ان کی طرف دھکیلا گیا۔ یہ قومیتیں، یہ مختلف زبانیں، یہ مختلف مسالک ایک گلدستہ بھی بن سکتے تھے، خوبصورت گلدستہ جو ہماری قوم اور ملت کی اور ہمارے وطن کی طاقت کا باعث بن سکتا تھا۔ متنوع لٹریچر، متنوع شاعر، متنوع ادب، متنوع رسوم و رواج، خوبصورت متنوع قسم کی کیا اسے کہتے ہیں کہ جناب والا کلچر، یہ خوبصورت گلدستہ بن سکتا تھا جس طرح سے موسم یہاں متنوع ہے، لیکن اس
برباد کیا گیا, باقاعدہ جان بوجھ کر یہ وطن کے ساتھ خیانت کی گئی. اب پاکستان کے عوام اس طرح کی خیانتوں کو قبول نہیں کریں گے. ہم پاکستانی ہیں, پاکستان ہماری مادر وطن ہے اور ہم اس کے وارث ہیں. کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اس کے ساتھ ایسے کیا اسے کہتے ہیں کھیل کھیلے کہ یہ خدا نہ خواستہ حاکم بدہن یہ پاکستان بھی ہمارے ہاتھ میں باقی نہ رہے. خطے کی صورتحال, دنیا کی صورتحال یہ بتلا رہی ہے کہ اس وقت دنیا یونیپولر ورلڈ نہیں رہی ہے, دنیا میں چینجنگ آ رہی ہے, دنیا بدل رہی ہے, چینج ہو رہی ہے, پاور ویسٹ سے اس کی طرف شفٹ ہو رہی ہے. ہمیں ان حالات کو بھی سمجھنا ہوگا, ہمیں دیکھنا ہوگا, ہمیں اپنے ہمسایہ ممالک سے بھی اچھے ریلیشن قائم کرنے ہوں گے اور دنیا کے ساتھ بھی اچھے ریلیشن قائم کرنے ہوں گے. جیسا کہ اس وقت پاکستانی قوم کا بیانیہ ہے, وہی بیانیہ جو خان صاحب بھی بیان کر رہے ہیں کہ جو 5-6 نکات میں نے بیان کی ہیں, یہ بیانیہ اس وقت پاکستان کے عوام کے دلوں میں راسخ ہو چکا ہے. یہ ان کی فطرت کی آواز ہے, یہ آہنگ اور ساز ان کی فطرت کا ساز ہے جو دنیا کا کوئی بھی ظالم اس کو نہیں دبا سکتا, اور یہ عوام نے ثابت کیا ہے. یہ جو 26 تاریخ کا اعلان ہے, انشاءاللہ ہم پورے پاکستان میں اس کے لیے نکلیں گے. ہم اپنی قوم اور ملت کے ساتھ ہیں, اپنی قوم اور ملت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. ہم نے پہلے دن سے اس رجیم چینج کی جو اقدام تھا اس کو کنڈیم کیا تھا, اس کی مذمت کی تھی. اگر ہمارا کوئی دشمن بھی حکومت کر رہا ہوتا نا, ہم پھر بھی اگر باہر کی قوتیں آگے ہمارا رجیم چینج کرتی ہیں اس کے مقابلے میں کھڑے ہوتے. ہم ایک غیرت مند پاکستانی ہیں, ہمارا حق ہے ہم حکومتوں کو گرائیں یا حکومتوں کو لے کے عوام کا حق ہے. کسی کی بھی حکومت ہوتی, اگر رجیم چینج ہوتا, باہر کی قوتیں آتی, ہم اس کے مقابلے میں کھڑے ہوتے. پہلے بھی رجیم چینج ہوتا نا, بولتا کوئی نہیں تھا, چپ ہو جاتے تھے. خان صاحب کو یہ کرنٹ جاتا کہ یہ بولے, ہم نے بتایا ہے کہ ہمارے ملک کے ساتھ سب سے کھیل کھیلا جاتا ہے. بہرحال ہم الحمدللہ اس راستے پر ثابت قدم ہیں, ہماری تاریخ گواہ ہے, اور انشاءاللہ ہم اس راستے پر چلتے رہیں گے. اور یہ استقلالی سفر ہے, کوئی یہ مت سوچے یہ 4 ماہ کا, 5 ماہ کا, 6 ماہ کا, 7 ماہ کا. امریکہ کے چنگل سے عالمی استقبالی کوئی بھی جو بھی ہمارے ملک پر تسلط رکھنا چاہتا ہے, ہمیں دبا کے رکھنا چاہتا ہے, ہمارے پر اپنے فیصلے ٹھوسنا چاہتا ہے, جو عالمی قوتیں ہیں, ان کے چنگل سے نکلنا آسان نہیں ہے. لمبی جدوجہد کی ضرورت ہے, میدان میں حاضر رہنے کی ضرورت ہے, آویز رہنے کی ضرورت ہے, آگاہ رہنے کی ضرورت ہے, ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ ہماری قوم و ملت ہم میدان میں حاضر ہے, ہم بھی حاضر رہیں گے. اور جب تک ہم حقیقی آزادی کی منزل تک نہیں پہنچتے, ہم خاموش نہیں رہیں گے, ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے اور اس سفر کو جاری رکھیں گے. ہم نہیں رہیں گے, ہماری اندر نسلیں جاری رکھیں گے. آج آپ نے دیکھ لیا کس طرح پاکستان کے, آپ جانتے بھی ہیں کہ پاکستان کے عوام میں جوانوں کی نسبت بہت زیادہ ہے, سب سے زیادہ آبادی جوانوں کی ہے. پاکستان کا جوان بیدار ہو چکا ہے. میں پاکستان کے جوانوں سے کہوں گا, ہمارا سلام ان ماؤں بہنوں پر, ان بیٹیوں پر جو گھروں سے باہر نکل رہی ہیں اس ہدف اور مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. لہذا میری پاکستان کے جوانوں سے بھی, پورے پاکستان میں ماؤں بہنوں اور بیٹیوں سے بھی, بڑوں اور بوڑھوں سے بھی, ہر وہ شخص جو سن سکتا ہے اور دیکھ سکتا ہے, اس سے میری اپیل ہے کہ اس راستے میں تھکنا نہیں ہے, مایوس نہیں ہونا ہے. بہت کوشش کی جاتی ہے مایوس کرنے کی, بہت کوشش کی جاتی ہے چیزوں کو جو حقیقت ہے اس کو چھپا کر نئی چیزیں لانے کی, پریشرائز کرنے کی, بہت کوشش کی جاتی ہے. ان جو کیا کہتے ہیں کہ لومڑی والے حربے جو ہے, مکارانہ جو حربے ہیں, ان سے مایوس نہیں ہونا ہے, آگاہ رہنا ہے جیسے آپ آگاہ رہے ہیں. اور جب تک ہم حقیقی آزادی کی منزل تک نہیں پہنچ جاتے, ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. آخری بات وہ یہ کہ جس وقت پاکستان کے اندر ایک چینج آئی ہے ملٹری کمانڈ کے اندر, اس کو ویلکم کرتے ہیں. ہماری توقع یہ ہے کہ واقعاً ہر کوئی اپنے ڈومین میں رہ کر کام کرے. اس سے پہلے جتنی بھی خرابی ہوئی ہیں اسی وجہ سے ہوئی ہیں کہ اپنی ڈومین میں نہیں رہا جاتا, اور وہ کام کیے جاتے ہیں جو نہیں کرنے چاہیے, اور جو کرنے چاہیے وہ کیے جاتے ہیں. دیکھیں پاکستان کے اندر جنگ آئی ہے, بارڈر سے جنگ ہمارے اندر آ گئی ہے. بلاخر کوئی تو مقصر ہے, کوئی تو جواب دہ ہے. کیوں جنگ ہمارے اندر آئی ہے, ہمارے ملک کے اندر؟ ہم نے اپنے ملک کے اندر 70,000 سے زیادہ شہید دیے ہیں, اپنے ملک کے اندر ہم نے خون دیا ہے. اب یہ سلسلے بند ہونے چاہیے. اس ملک کو اوورہال کرنے کی ضرورت ہے, بہتر کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہماری مادر وطن ہے, جو اپنی مادر وطن کرنی ہے وہ کسی کا بھی نہیں ہے. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے ہم اس پر آواز اٹھائیں, ان حقوق کے حوالے سے, لا قانونیت کے حوالے سے. اگر کوئی لوگ غلط کام کرتے ہیں ان کو مسنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, انہیں لے دیں کورٹ کے اندر. لا قانونیت کے خلاف سٹینڈ لیں گے, آئین شکنی کے خلاف سٹینڈ لیں گے. آئین کے اندر ہر ایک کی ڈومین موجود ہے, تمام اداروں کی ڈومین موجود ہے. ہر
बाकी अपने डोमेन में रहे, अपनी जिम्मेदारी अंजाम दे, जो हलफ उठाया जाता है उसकी पासदारी करें इंशाअल्लाह। उम्मीद है कि हमारा ये जो पीटीआई के साथ एक रिश्ता है, उसूलों का रिश्ता है, इन उसूलों पर हम जान दे सकते हैं। ये किसी मादी तवक्को की खातर, किसी लालच की खातर नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा, हमारे दुश्मन की भी हुकूमत होती, अगर इस तरह से गिराई जाती, आलमी कुव्वत इनवाल होकर गिराती, तो हम उसके मुकाबले में खड़े थे, हम उसको कंडेम करते जो ये काम कर रहे हैं, और हम इसको कभी बर्दाश्त न करते। ये उसूलों का ताल्लुक है, उसूलों की बुनियाद पर जदोजहद का ताल्लुक है, और इंशाअल्लाह हम इस पर साबित कदम लेंगे। मैं पाकिस्तान के तमाम अवाम से, अपने तमाम साथियों से, मजलिस के तमाम पैरोकारों से, और जितने भी लोग हमारी बात सुनते हैं, सबसे गुजारिश करता हूं कि 26 नवंबर हमारे वादे का दिन है, हमारे वादे का दिन है, मैदान में हुजूर का दिन है, मैदान में कदम रखने का दिन है, और पूरी ताकत के साथ आने का दिन है, और इंशाअल्लाह हम आएंगे, जरूर आएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का, कि कल की जो खान साहब की कॉल है उसकी मुकम्मल तौर पर हिमायत की है, और जैसे अभी कहा रामा ने कि ये जद्दोजहद का हिस्सा भी रहे हैं पिछले 7 माह 7.5 माह से। जो एक कौमी एक जद्दोजहद है, वो किसी एक सियासी पार्टी की जद्दोजहद नहीं है। जिस तरीके से कल की कॉल भी जो है वो कोई इलेक्शन का जलसा नहीं है। कल हम लोगों को इसलिए नहीं बुला रहे कि हम उनसे कहेंगे कि इमरान खान को वोट डालो, और ना इस तहरीक का मुतालबा ये है कि तहरीक इंसाफ को हुकूमत दे दें या इमरान खान को वज़ीर आज़म बना दें। ये तहरीक जो है वो एक कौमी तहरीक है, वो पाकिस्तान के हर ज़ुबान बोलने वाले की, हर इलाके में रहने वाले की, हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले की, हर मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले की, जो शख्स चाहता है कि पाकिस्तान एक खुददार, खुद मुख्तार, हकीकी तौर पर आज़ाद मुल्क हो, ये उसकी तहरीक है। इसलिए इसके अंदर तमाम लोग जो शिरकत कर रहे हैं वो एक अपने कौमी नज़्म-ओ-ज़ैन के लिए काम कर रहे हैं, और इस सिलसिले के अंदर जैसे मैंने कहा, जो मजलिस ने किरदार अदा किया है उसको भी सराहते हैं, और उम्मीद है कि कल, उम्मीद भी है, मैं तो कहूँगा उम्मीद, मुझे तो उम्मीद है और साथ यकीन भी है कि इंशाअल्लाह ताला कल जो है वो एक पाकिस्तान की तारीख रकम होने जा रही है। मेरी ज़ाहिर तंजीमी जिम्मेदारी भी है, और इस वक्त भी आने से पहले मैं तमाम जितने पाकिस्तान में हमारे लोग बैठे हुए हैं उन सब के साथ टेलीफोन पर रब्ता करके पूछ रहा हूँ कि कहाँ तक हालात पहुँचे हैं और तैयारी कैसी चल रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह कमाल का जज्बा है इस वक्त। अभी गिलगित बल्तिस्तान से, बलोचिस्तान से और सिंध से काफिले चलना शुरू हो चुके हैं, और आज शाम को जनूबी पंजाब के तमाम अजला से काफिले चलना शुरू हो जाएंगे। आज ही शाम को, आज रात को टोबा टेक से, झंग से भी काफिले निकलने शुरू हो जाएंगे, और फिर बाकी अजला जो है वो कल सुबह जल्द निकलेंगे, क्योंकि सबको हिदायत यही है कि यहाँ पर 1 बजे तक आपने पहुँच जाना है, मरी रोड तक आपने आ जाना है, ताकि उसके बाद खान साहब खिताब करें। और ये मगरिब से पहले पहले अब तमाम काम मुकम्मल करना चाहते हैं, सर्दियाँ भी हैं, और ये भी चाहते हैं खान साहब के लोग वक्त के ऊपर आए, ताकि जो पैगाम, जो बहुत ही अहम पैगाम है, वो उन तक और उनके ज़रिए जो ज़ाहिर सामने लोग बैठे होंगे, पूरा पाकिस्तान ही होगा यहाँ पर, लेकिन वो लोग जो बाकी पूरे पाकिस्तान के अंदर बैठे होंगे उन तक भी ये पैगाम जाएगा। और रबात के जलसे के अंदर जिस तरीके से खान साहब ने उस दिन कहा था कि ये तहरीक, और अभी अलावा भी यही बात कर रहे थे, ये कोई तहरीक आसान काम नहीं है। कोई किसी मुल्क के लिए आज़ादी हासिल करना आसान काम नहीं होता, और हमें पता है कि हमारे आबा अजदाद ने किस किस्म की कुर्बानियाँ दी, क्या जद्दोजहद की थी, जिसके बाद पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क बना था। और इसी तरीके से किसी भी मुल्क को एक हकीकी तौर पर आज़ाद करना जो है वो भी कोई आसान काम नहीं है। ये कोई T20 का मैच नहीं है कि आप बड़ी यकजोई के साथ इसके अंदर मेहनत करेंगे, 1 महीने तो आपका मुल्क जो है वो हकीकी तौर पर आज़ाद मुल्क बन जाएगा। लेकिन हमने तो अपने तालीमी दौर में भी हमने सुना था, मैं मईशत पढ़ता था तो उसमें कहा जाता था कि सबसे पहली तब्दीली जो है वो जहन के अंदर आती है, और अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए ये है कि पाकिस्तान की कौम जो है उसकी ये जहनी तब्दीली हो चुकी है, पाकिस्तानी कौम फैसला कर चुकी है। अब देखना है कि बाकी पाकिस्तान, और इसके ऊपर मैं कल अपनी तकरीर के अंदर भी तफसील से जरा इसके ऊपर बात करूंगा, क्योंकि ये वाकई में एक तारीखी मोड़ आ गया है। उस मोड़ के ऊपर जब खड़े हुए हैं तो पाकिस्तानी कौम के जहन के अंदर कोई इमाम नहीं, पाकिस्तानी कौम बिल्कुल वाज़ेह है
वो इस वक्त फैसला कर चुके हैं कि अगर पाकिस्तान के अंदर आइंदा पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले होने हैं तो वो फैसले जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के अवाम का हक या उनके चुने हुए नुमाइंदों का हक है। ये फैसले ना मुल्क से बाहर कहीं किए जाएंगे, ना पाकिस्तान के अंदर बंद कमरों के अंदर ताकतवर तबके बैठकर डीले करके ये फैसले करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला कल एक तारीखी दिन होने वाला है। तमाम लोग जो ये सुन रहे हैं, पैगाम सुन रहे हैं, उनसे मैं कहूँगा कि आप अगर कल यहाँ पर आएंगे, कल पिंडी पहुँचेंगे, मरी रोड आएंगे, तो आप अपनी एक तारीख का हिस्सा बनने के लिए जा रहे हैं और तमाम इंतजाम आपके लिए मुकम्मल कर दिए गए। इंशाअल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात होगी। अच्छा अलावा साहब सर बताइएगा, जिस तरह आपने कहा कि अब जो है अमरीकी साजिश हुई थी और जो है मुदाखलत हुई थी, उसके जरिए हुकूमत गिराई गई थी, लेकिन अब खान साहब ने कहा है कि वो अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, तो क्या उसके बाद भी आप साथ दें? देखिए, हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान, हम किसी के साथ दुश्मनी नहीं चाहते। एक ही मुल्क है जिसके साथ सफारती ताल्लुकात नहीं है पाकिस्तान के और नहीं होने चाहिए, वो इसराइल है। बाकी हम चाहते हैं कि हर कोई अपनी जगह पर रहे, पर अपने फैसले न ठोसे। उन्होंने जो कहा है कि हम किसी के गुलाम नहीं बनना चाहते, ये बात उसूली बात है कि हम किसी गुलाम नहीं बनना चाहते। कोई हम पर अपनी राय न ठोसे, अपने फैसले न ठोसे, और हम अपने नेशनल इंटरेस्ट पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे किसी के नेशनल इंटरेस्ट के लिए, और अपनी नेशनल सिक्योरिटी पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे किसी के नेशनल सिक्योरिटी के लिए। लिहाजा ये उसूल है। बाकी हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान तकरीबन 22-24 करोड़ आवाम का मुल्क है, पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है। हम ये चाहते हैं कि हम हमारी सॉवरेनिटी पर हर्फ न आए, हम अपने फैसले खुद करें, अपनी नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट का ख्याल रखें, और जो दुश्मनी करेगा उससे दुश्मनी करेंगे, देखा जाएगा। हम हमारी तरफ से पैगाम अमन का पैगाम है सबके लिए, और ये बेहतरीन चीज है। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, देखिए दुनिया में एक कायदा है कि जब भी बहरान आते हैं तो उन बहरानों से निकलने के लिए इलेक्शन कराए जाते हैं जल्दी। पाकिस्तान के इन बहरानों से निकलने का वाहिद हल है जल्द अज जल्द साफ और शफाफ इलेक्शन कराए। अच्छा नंबर साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि जो पीटीआई है वो उनकी क़यादत ऐलान करके आई है कि हम धरना देंगे, और जो एनओसी के लिए दरख्वास्त दी थी उसमें भी धरने का कहा गया था, लिखा गया था, लेकिन डीसी पिंडी ने सिर्फ 1 दिन की इजाजत दी है, तो क्या आप धरना देंगे? ये डीसी से अभी बात की जाएगी जी। देखिए हमारे इंतजाम जो हैं वो तो मुकम्मल हैं, धरना होगा या नहीं होगा ये तो कल इमरान खान साहब के ऐलान के ऊपर मुनहसर है, लेकिन अगर वो चाहेंगे कि यहाँ पर लोगों को रोका जाए तो हमारे इंतजाम तो मुकम्मल है। सुबह में वहाँ गया था, मीडिया टॉक भी वहाँ से की, खेमा बस्ती बन चुकी है, और इंशाअल्लाह ताला आज शाम को ही वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त माहौल लगने वाला है। इमरान खान की जो हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के हवाले से था, उनको इत्तला आ रही है कि वो इजाज़त दे दी गई है डीसी की तरफ से भी और अदालत की तरफ से भी। जो आपका स्टेज लगना है सर, एक तो ये बता दें कि कहाँ पर लगेगा, क्योंकि इत्तला ये है कि फैज़ाबाद में स्टेज लगाने की कोशिश की गई तो पुलिस की जानिब से मना किया गया, और ये कहा गया कि ऊपर से हिदायत है कि यहाँ पर स्टेज नहीं लगेगा। एक तो सर ये क्लियर कर दें कि स्टेज कहाँ पर लगेगा। दूसरा ये कि वज़ीर दिफा हाजी आसिफ साहब ने भी ये स्टेटमेंट दिया है कि पीटीआई और इमरान खान ने तैनाती हुई बड़ा अच्छा रवैया अपनाया है, और जो उनका एक बयानिया था वो उससे पीछे हटे हैं, तो इससे सियासत में इस्तेहकाम आएगा। तो क्या सर जो बैकडोर मुज़ाकरात हो रहे थे वो कामयाब हो गए हैं कि आप भी कल खामोश है, तैनाती भी स्मूथ तरीके से होगी, और अभी आप कह रहे हैं कि धरने का भी अभी कंफर्म नहीं है, तो क्या वो जो बैकडोर मुज़ाकरात थे वो कहीं कामयाब हो चुके हैं? यार बैकडोर मुज़ाकरात कामयाब हुए या नहीं हुए, लेकिन क़यामत की निशानी हमें ज़रूर देखने को मिल रही है। अगर ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि तरीके साहब ने कोई अच्छा काम किया, इसमें कोई भी किसी मुज़ाकरात के अंदर आर्मी चीफ कौन होगा उसका जिक्र भी नहीं, कभी भी। ये हमारा इशू ही नहीं। वो लोगों ने हमसे पूछा कि अच्छा जी वो तो आर्मी चीफ लग गया है, आपने भी मान लिया है, तो अब ये 26 तारीख को क्यों करें? हम यहाँ के आर्मी चीफ लगवाने के लिए आ रहे थे, वो हमने अपना को कैंडिडेट खड़ा किया हुआ था कि इसको आर्मी चीफ बनाओगे, वरना तो हम आ रहे हैं। इसका हमारा मकसद जो है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है फ्रेश इलेक्शन, साफ शफाफ जल्द इलेक्शन। पाकिस्तान को बहरान से निकालने का इसके अलावा रास्ता ही कोई नहीं है, और जो भी सदर साहब ने कोशिश की है सालसी करने की, वो सारी इसी एक नुक्ते के ऊपर मुनहसर थी, उसका कोई आर्मी चीफ साहब ये बताइएगा कि अभी तक जो है आप एक कदम बढ़ाएंगे तो दूसरी जमातें भी आपकी तरफ एक कदम बढ़ाएंगी, किसने पहल करनी है? अब दोबारा जो मुज़ाकराती अमल रुका हुआ था, आप क्या समझते हैं अब होने क्या जा रहा है? क्योंकि एहसन इकबाल तो कहते हैं कि फ्लड है और इलेक्शन
अगस्त से पहले मुमकिन नहीं, तहरीक इंसाफ को सोचना होगा। आप वैसे ये बात उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त उन्होंने कही है, वाकई में सैलाब आया है, लेकिन ये सैलाब पानी का नहीं है ठिकाना, ये अवाम का सैलाब है जो उनको नजर आ रहा है, जिसके खौफ से वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। ये सारे जमहूरियत के दावेदार जो है इलेक्शनों से भाग इसलिए रहे हैं, ठीक है ना। और इलेक्शन देखें, मैं आपको बता दूं मुज़ाकरात में कौन पहल करता है, वो मुसलमान असूल जमहूरियत का हुकूमत करती है, लेकिन मुज़ाकरात तो बड़े सादा से है ना। इस वक्त मुल्क 1971 के बाद अपने बदतरीन सियासी और माशी बहरान से गुजर रहा है। 1971 के बाद ऐसे हालात नहीं पाकिस्तान में पैदा हुए। इसका हल सिर्फ और सिर्फ एक नया इलेक्शन है। हमने उनसे बैठ के वो क्रिकेट के ऊपर तो मुज़ाकरात करने ना, जिस दिन वो ये फैसला कर देंगे वो इलेक्शन कराने को तैयार है, तो इलेक्शन के लवाजमात के लिए हम बिल्कुल उनके साथ बैठ के बात अच्छा असद उमर साहब आपने अभी असद उमर साहब आपने तो क्या वो ताफुला दूर हो गया? दूसरा ये जो तरीके साहब से आपका ताज़ा इंतखाबी है, देखिए टेक्निकल लेवल के इख्तिलाफात हो सकते हैं, निकाल कर लोग आए, हमारा स्ट्रेटेजिक लेवल पर कोई इख्तिलाफ नहीं। दुरुस्त है कि स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर ये सोचा मूव स्ट्रेटेजिक मूव, टेक्निकल लेवल के इख्तिलाफात होते हैं, होते रहते हैं, आइंदा भी होंगे। मुहिम हमारे लिए एक स्ट्रेटेजिक मूव है जो इस मुल्क को चेंज करने के लिए, बदलने के लिए, इस मुल्क को आजाद करने के लिए हम उधर बैठे रहे और स्ट्रेटेजिक मूव से जो हमारी मादरे वतन तकाजा करते हैं कि हम इसका हिस्सा बने, वो असूल जो हमारे असलाफ और हमारे शोधा के थे वो तकाजा करते हैं कि हम इसका हिस्सा बने और इस वतन को आजाद करें। अगर आजाद करें तो मुमकिन है जो हादसा और वाकयात वो होते रहे वो ना हो जिनको हम जनाजे लेकर बैठते थे। जैसे इस दोस्त ने सवाल किया था, क्योंकि अमेरिका का मिलाकर साबिता अच्छा नहीं है। अमेरिका ने दुनिया के अंदर रजीम चेंज किए हैं, इसराइल की हमायत करता है और दुनिया के अंदर अपनी हेजमनी को बाकी रखने के लिए बहुत कुछ किया उसने। पूरा अफगानिस्तान उसने उजाड़ दिया, पूरा इराक तबाह कर दिया, पूरा शाम तबाह कर दिया। लिहाजा अमेरिका को अपना रवैया बदलना पड़ेगा। अगर दुनिया के मुल्कों के अंदर रिजेंटमेंट है, अमेरिका से इख्तलाफ है या बाद लोग दुश्मनी की बात भी करते हैं, तो उसमें अमेरिका का अपना रवैया है। अगर अमेरिका गुलाम बनाना छोड़ दे जबरदस्ती लोगों को, तो इस तरह की सूरत नहीं पैदा होगी। बराबरी की सतह पर बर्बाद होनी चाहिए। अल्लाह ने हमको बराबर खल्क किया है, हम सब इंसान है, हमारा हाकिम आला अल्लाह है। मौलाना साहब ये बता दें कि आप दीन के पैगंबर हैं और आप दीन की बात करते हैं। आपने एक न पहले नंबर पर सवाल ये है कि ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आप दरख्वास्त कर रहे हैं कि कोई सेफ रास्ता हमें दे दिया जाए, इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? बात है। दूसरा ये कि आपने कहा कि तहरीक तहरीक है और जल्द कल शुरू होगा, इमरान खान साहब जल्द आएंगे ताकि मगरिब तक मामला खत्म हो जाए। ये इनकलाबी तहरीक का दुरानिया क्या मगरिब तक रहेगा? मैंने ये नहीं कहा था कि उससे पहले खत्म हो जाए, मैंने कहा था इमरान खान अपनी तकरीर करना चाहते हैं उससे पहले। जहाँ तक उनकी ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट का ताल्लुक है, तो ख्वाजा आसिफ से बोले कि सेफ वे और एग्जिट वो मांगता है जो कमजोर हो। आज की सूरत हाल मेरे भाई ये है कि जो लेटेस्ट सर्वे तक हर सर्वे ये दिखाता है, हर इलेक्शन ये दिखाता है 75% से ज्यादा सीटें तहरीक इंसाफ जीत रही है। पंजाब के अंदर फारिग करके रख दिया हमने मुस्लिम लीग नून को। कल का जो सर्वे आया है उसके मुताबिक 59% पाकिस्तानी कहते हैं इमरान खान बेहतरीन लीडर है पाकिस्तान के लिए, और 4% पाकिस्तानी कहते हैं कि शहबाज शरीफ बेहतरीन लीडर है। तो भाईजान सेफ एग्जिट तो इस वक्त उनको चाहिए। हम सोच सकते हैं, इसके ऊपर गौर किया जा सकता है कि जो उनके साथ शर्मिंदगी उनको देखनी पड़ रही है, जो सियासत उनकी दफन होती जा रही है, उसमें कैसे उनको मुंह छुपाने की कोई जगह दी जाए। साहब ये बता दें कि आप मार्च इस्लामाबाद दाखिल हुआ तो हमने बेहतरीन इंतजाम कर सके हैं, आप क्या इंतजाम कर रहे हैं इस्लामाबाद दाखिल हुए? देखिए ये तो फैसला जो है वो इमरान खान साहब का फैसला है कि वो कब इस्लामाबाद दाखिल होना चाहते हैं। अभी जो कल की कॉल है वो पिंडी के लिए कॉल है। इमरान खान साहब कल शाम को बोलेंगे कि इस्लामाबाद की तरफ जाया जाए, तो इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, कोई गैर मुल्क तो है नहीं, हमें पासपोर्ट और वीज़े की तो ज़रूरत नहीं है इस्लामाबाद जाने के लिए, तो इस्लामाबाद भी जाया जा सकता है। लेकिन इस वक्त की जो कॉल है वो पिंडी की कॉल है। और आपके साथ अगर वो कमेटी बनाती है ताकि किया जाए और उसके बाद निकाल सकते की तरफ जाया जाए, तो क्या तरीके
मैं ने जैसे काशिफ अभी भी पहले कहा और हम कई दफा इसी बात को दोहरा चुके हैं, वो ऐलान करें कि पाकिस्तान को, अब वो भी इस नतीजे में पहुंचे हैं कि बगैर एक नया इलेक्शन कराए हुए पाकिस्तान को इस बहरान से बाहर नहीं निकाला जा सकता। उसके बाद उस इलेक्शन को कराने के लिए जो तमाम लवाजमात जिनको मैं कहता हूँ, जिसमें एक इलेक्शन कमीशन, एक गैर जानेदार इलेक्शन कमीशन शामिल है, उसके ऊपर बातचीत की जा सकती है। लेकिन पहले ये तो फैसला हो कि इलेक्शन करवाना है। मैं आखिरी बात करके ये उठूंगा कि मेरे अप्रैल के महीने से, अप्रैल के देख लें, मई के देख लें, 73 से मेरे सारे टेलीविजन इंटरव्यू आप उठा के देख लें, मैं दो बातें बोलता हूं। एक, बतौर तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल के, मैं चाहता हूं ये हुकूमत करे, क्योंकि ये अपनी सियासत दफन करते चले जाएंगे और आपने देखा है कि वो पेशन गोई दुरुस्त साबित हुई है। बदकिस्मती से मेरी दूसरी पेशन गोई भी दुरुस्त साबित हुई और साथ साथ मैं ये कहता था, लेकिन इसके बावजूद हम इलेक्शन इसलिए मांग रहे हैं कि मुल्क का नुकसान होगा और इतना नुकसान हुआ है पिछले 8 महीने के अंदर इस मुल्क का कि जिसकी कोई नजीर नहीं मिलती। तो क्योंकि मैं पाकिस्तानी पहले हूँ और तहरीक इंसाफ को मैं मेंबर बाद में बना था, तो बतौर पाकिस्तानी मेरा मानना ये है हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, वरना ये मुल्क जिस किस्म के नुकसान से गुजर रहा है, ये अब सिर्फ माशी नुकसान नहीं रह गया है, अब ये कौमी सलामती को खतरा बनता जा रहा है जो हमारी सूरत है। हेलीकॉप्टर लैंडिंग से मुताबिक ओके सर, ओके सर,